क्या करेंगे? अरे वाह, दिखा दो। नहीं यार, अच्छा ही नहीं मिले, तुम हरकतें करोगे फालतू में। लहरी बनी है। मेरी मामा से जाती है, मतलब कैमरा तो करेंगे। मजा आ जाता देख के। बेहतर मेरा बेहतर है। मेरा बेहतर Recording in progress. ये मेरा बहुत कोई भी लाइफ मैंने देखी था Okay, assalamu alaikum. How is everyone? Doing good? No response? Everything okay? Are you guys okay? अच्छी बात है बेटा, लास्ट तक जो सेलफोन की दुनिया में गम है बाहर निकले। ओके, कैन आई हैव योर अटेंशन? आई आस्क्ड हाउ आर यू गाइस, देयर वाज नो रिस्पांस। आप लोगों ने टेस्ट दिया अभी? खुदा ना खास्ता नहीं, आप लोग अभी आए हैं, जिंदगी का टेस्ट चल रहा है। ओके, कब से आए हो? 12:30। 11:30 यानी कि ज्यादा टाइम। चलो एनीवे, सो वी स्टार्टेड अप विद a huge पता नहीं क्या काउंसलिंग, एंड देन वी स्टार्टेड अप विद नेमिंग। और नेमिंग में हमने सिर्फ काउंटिंग ही की और आई थिंक कुछ किया नहीं है। सो कोशिश ये करेंगे कि आज थोड़ा सा स्पीड में भी काम करें और आज थोड़ा सा मजे का भी काम करें। Initially, I'll start up with basics because I want you guys to have an understanding कि वो मैं क्या expect कर रहा हूँ आपसे। और second thing, very important part is in your exams, in your AKU exams or in your IndiCAT exams, they hardly give you equations. They give you names. So if that is what they're going to ask us, so we need to be very, kind of pro in naming anything, what they can ask us, or if we are unable to understand how that name has been originated, then we won't score well.
मैंने अगर मैं 20 MCQs आपसे AKU की बात करता हूँ, तो इन द AKU एग्जाम्स 20 MCQs में से कोई एक होता है शायद हार्डली, जिसमें वो इक्वेशन, दे गिव यू द इक्वेशन एंड देन यू आस्क यू द आंसर टू इट. Other than that, they always use terms. For example, the reaction can be asked as benzenes. Characteristic reactions can be 1, 2, 3, 4. So you have to select electrophilic substitution reactions. You cannot select electrophilic addition reactions. And if they say, what is 1, 2, 3 trinitro benzene, तो you have to know क्या चाहिए structure है, ये नाम पूछ रहा है इसका. This is used as an explosive. So this topic is going to stretch till late because हम शुरू तो जाहिर है बेसिक से करेंगे. So first functional group what we are going to study would be saturation, that's alkane, then we are going to move towards alkenes and alkynes and so on, but the basic idea will stay same. ठीक है. So don't get into के हमें naming क्यों पढ़ रहे हैं हम और ये useless है. It is not useless, it is one of the most important and scoring aspect of your test. Is this expectation clear? Okay. So let's start up with rule number 1 that states, so बल्कि इसको ऐसे कर लेता हूँ, IUPAC naming. First rule, so the longest continuous carbon chain is selected as the parent chain. For example, if we have something like this, so the longest continuous carbon chain would be this. So whatever else remains is categorized as a branch in simple terms, and in MDCAT's language, a substituent. You can also say that this is a side chain. So is it understood to everyone? Is this clear? Okay, got it. Rule 2. Side chains are numbered according to their proximity from the terminal carbon. So what does that has to mean? So if we have something like this, so the counting preference should be from left-hand side, because in counting from left-hand side, the side chain is more closer towards the terminal carbon. Terminal carbon is the carbon that is at the end of a bond. Okay. And we cannot count from this side. Why? Because counting from this side is far away from the terminal carbon. So how do you decide? It's not a matter of distance. Basically, it's a matter of numbers. So if you count from the left-hand side, you see the coefficient 2, right? If you count from the right-hand side, you will see the coefficient 4. So we always have to select the least coefficient or the least number. Beta, is this understood?
to everyone. Good. Done? Rule 3. For multiple side chains of same groups, prefix, di, tri, or tetra is added to the name to show multiple groups. Now, what does that have to? So let's understand it through an example. If we have two alkyl groups, which are exactly similar alkyl groups, so how do we number? So that is according to rule number 2. Proximity, that's the only side I can select, left-hand side. Is that correct? Right? And then I see a branch on second carbon and I see a branch on third carbon. And branches are basically labeled as alkyl branches if they are hydrocarbon branches, right? So term ALK is supposed to be showing us number of carbons. So since I see one carbon here, that has to be meth, right? And YL, why? Because that's a branch side chain. Similarly, that's also a methyl group. So I'm not going to write methyl twice. Instead, what I'm going to do, I'm going to write di. That shows two methyl groups, right? Had there been three methyl groups, what should I be writing? Tri for three methyl groups, right? And so on. So how do I name this correctly? So that's going to be 2, 3. That's the position of two methyl groups. And now I'm not writing methyl, methyl, I'm writing di. That shows two methyl groups. And the original carbon chain has 5 carbons, so that's pentane. Is this understood clearly? Any doubts, any questions? Good. Dawn Education Expo is happening. Today is what? 28th Jan. So timing for today is 11 a.m. to 7 p.m. So if you are wishing to pursue your higher education overseas, you can visit Expo Center. 11 बजे से 7 बजे तक. आज और कल भी था, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला था, मिस हो गया. तो आज मेरे पास एक और भी मैसेज आया था. आई थिंक यहाँ से हम लोग जा भी नहीं, 2-3 टीचर. आप लोग भी चले जाइए. Done? Okay, let's do some practice questions for this. And then we can do skeletal things like this.
So let's identify the parent chain. That's going to be the parent chain here, right? Now, the counting preference, this should be from the left-hand side, as methyl groups are closer towards the edge here, terminal carbon say, and then I can see 3 methyl branches. So I'm going to write 2, 3, 4, try for 3 groups. All of them are methyl branches, so trimethyl. Total is 6 hydrocarbon, all of them are single bonds, so hexane, right? Is this understood to everyone? Yes. So then here, that's the main chain, right? That can be the main chain. थोड़ा सा तंग करूँ आपको. This can also be the main chain, right? आगे भी जा सकता हूँ. एक ही बात है. आपकी मर्जी है. जो आपका दिल चाहे. सेकंड पे आप ये भी कर सकते हैं. वहां से भी एक ही नाम आएगा. आपकी मर्जी है. So that can also be the main chain. It's absolutely fine. कोई मसला नहीं है. And then which side will you count from? That's the side 1, 2, 3, 4. So that's going to be second carbon पे this shows methyl. So 2 methyl. And total are 4 carbons. So butane. ठीक है. Other than that, अगर किसी बच्चे ने ये selection की होती, right? Then too, it's going to be the same thing. आप फिर यहाँ से काउंट करते. Let's do it here. 1, 2, 3, 4. Then 2 second carbon पे methyl. So is this understood to everyone? Yes. So that's not the pattern you're selecting. You're going to end up with the same number, whatever you. Is that always the case? Okay. It's always the case. If you're naming it correctly, you're going to end up with the same name regardless of the chain you're selected. Now, let's move towards the other example. So that's the main chain here, right? Main chain अब ये भी हो सकती है. Simple as that. नीचे भी जा सकते हैं. तो जो दिल चाहे आप, जो दिल चाहे. So for your understanding, आपको तंग करने के लिए, let's do this as the main chain, right? Then this becomes the branch. This becomes the branch here. And we can count from any of the sides since it is a symmetrical structure. We don't actually worry about कि किस side से count करें. चाहे आप यहाँ से कर लें 1, 2, 3, 4, 5 और आप वहाँ से कर लें. You're going to end up with the same name. So what I see is my branch on third carbon. So that's 3. Now branch is having 2 carbons. So that's ethyl. And total number of carbon chain in my parent chain, that's the green chain, is 5. So pentane. Is this understood? Good. Can I change my slide? Now, let's add one more position which might not have done before. Rule number 3 tha. Rule number 4. If 2 different alkyl groups are present on equivalent carbon atoms. Okay. Then numbering is done on alphabetical preference. Now there are 2 main issues with this rule. Students, they don't actually get this. Let's understand it through an example. देखो ध्यान से देखो पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ. मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, राइट, और मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है CH3, ठीक है. So what's unique about this structure? There's 2 different alkyl groups. So if that's the main chain, right? I'm having 2 different alkyl groups. Can you guys see that? पक्की बात है, सब देख सकते हैं. First one is methyl, and the other one is ethyl, right? Do we see that? And then when I say they are on equivalent carbon, what does that has to mean? Equivalent carbon. इसका क्या मतलब? They're the same distance from the Exactly.
So no matter which side you count from, you are going to end up the same number. जैसे for example, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. So for this alkyl preference, that's 3, right? And if you count from the other side, what happens is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that's third carbon के लिए यहाँ पे हमारे पास है फिर methyl. So in such a case, rule says you have to follow what? Alphabetical preference. Now what does that has to mean? See, this is methyl, right? Which has an M here. And that's an ethyl, which has an E here. So if I follow alphabetical preference, E comes first. That means this this side of counting would be considered correct. That would be incorrect. Do you guys get this? Yes. Is this understood? So what do I name it? Jaldi se bata. I'm going to write ethyl, right? And what else? What else? 4-methyl, right? And then total 6 hexane. Is this understood? पक्की बात है. मुझसे बच्चे वैसे काफी बातें करते हैं. आप लोगों से कोई बातें नहीं करते. सुन होते हैं इसी तरह हर क्लास में. पिछली दफा बहुत ज्यादा बात है। इसी दफा ज्यादा बातें कर ली. ये बात तो सही है. महीने का कोटा पूरा पूरा. ये बात भी सही है. ठीक है, I can buy that. Done? Yes. प्लीज डोंट बी शाय. जो अगर कोई क्वेश्चन है किसी का भी और आप यूं देख रहे हैं ना, इसका मतलब है यू आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग कि किसी को समझ में आ रहा है तो सबको, जब सबको समझ में आ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए. सो प्लीज डोंट बी शाय. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट थ्रो इट अवे. कोई मसला ही नहीं है. किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके सवाल पे वो हंसे मेरे सामने. समझ रहे हैं आप? उसका मर्डर करके ना उसकी लाश को डस्टबिन में डालिए. सवाल पूछना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. अब वो फजूल सवाल जो पूछेगा ना उसको मैं डायरेक्ट ब्लॉक करूंगा. क्या कहते हैं ये? ताहा कहता है 3 इथाइली. व्हाट इज 3 इथाइली? मिथाइल हेक्सेन. नहीं हो सकता मेरा बच्चा, बिकॉज 3 पे इथाइल है और 4 पे मिथाइल. 3-4 इथाइल मिथाइल नहीं हो सकता. नहीं हो सकता, बिल्कुल. 3-4 इथाइल मिथाइल भी नहीं हो सकता. और ये भी नहीं हो सकता कि हम लिख दें 3-3 इथाइल मिथाइल. ये भी नहीं हो सकता. यानी कि अगर एक ही कार्बन पे भी होता तब भी ये नहीं कर सकता. तो एवरी आइडिया इज जस्ट मेक इट सिंपल. आप IUPAC नेम इतना जबरदस्त लिखते हो कि उसके एक एक नंबर से एक एक चीज पैटर्न हो रही होती है स्ट्रक्चर. डू यू गेट इट? सो यू कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग. लास्ट बैच में एक बच्चा था ताहा अहमद नेक्स्ट सर का. अब वो कहाँ है? APU में. ये वाला भी जानना हो सकता है ये भी वही हो. नंबर 4 हो गया. और नंबर 5 में हम आपको तंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. देखिए एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं. तो तंग करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ सिमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है. ये रूल नंबर 5 नहीं है. नहीं, रूल नंबर 5 नहीं. रूल नंबर 5 को क्रॉस चेक करवाते हैं आपसे. जब आप क्या करेंगे इसके साथ? How do you number this? So first thing is, which side do you count from? So we are not going to count from this side. ठीक है. ये सही नहीं है बेटे, because we are not preferring ethyl always. यहाँ से अगर आप काउंट करते हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, so आपको फर्स्ट ब्रांच मिलती है थर्ड कार्बन पे, राइट? लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट करते हो तो गलत है. अगर आप राइट हैंड साइड से काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5, राइट? सो सेकंड कार्बन पे आपको फर्स्ट ब्रांच मिलती है. सो दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर्ड. अब नाउ व्हाट डज दैट हैज टू मीन? मिथाइल प्रेफर्ड नहीं हुआ है, ब्रांच प्रेफर हुई है, बिकॉज ये नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है. तो इसकी स्ट्रक्चर में हम मेंशन करते हैं नॉट इक्विवेलेंट कार्बन. अगर हम लास्ट एग्जांपल पे जाएं,
So if you count from this side or that side, you can see three positions, right? So 3 ethyl पे भी है, 3 methyl पे भी है. So that was kind of equivalent carbons. Do you guys get this? Sir. जी. सर ये 3 प्रोफाइल पेंडिंग तो कौन सा, ये वाला? नेक्स्ट अभी आपने अगर हम यहाँ से नीचे से काउंट करें तो लॉन्ग चेन प्राइस का 5 ही बन रहे हैं हर जगह से. सर आप सुनिए यहाँ से हम आपने बोला लॉन्ग चेन तो वहां से हम 5 काउंट करें, यहाँ से भी तो 5 काउंट होंगे, पर यहाँ नीचे से 5 काउंट करेंगे तो वो एक प्रोफाइल चेन बन जाएगी. अच्छा, आई गेट योर क्वेश्चन. आते हैं उसके ऊपर. पहले तो इसका नाम रख लें जरा. इनका क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद इनका आंसर मैं दूंगा. तो नाम रख लेते हैं. तो मीथाइल और इथाइल है, राइट? और ये तो सही होना चाहिए ना, ये वाला कुछ राइट, ये सही होना चाहिए. सो दैट्स द करेक्ट नेमिंग. सो अब मीथाइल और इथाइल में भी अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नंबरिंग में नहीं रहेगी, लेकिन नेम में रहेगी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट 3 इथाइल and then I'm going to write 2 methyl. Total is क्या? Total is 5 carbon, so pentane. बेटा ये बात समझ में आती है सबको? पक्की बात है? गुड. अब आते हैं इनका क्वेश्चन. इन्होंने असल में रूल नंबर 1 में थोड़ी सी गड़बड़ की है. रूल नंबर 1 वाज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. और इनके जहन में ये है कि सर आप एक काम करें, आप सेलेक्ट करें. क्या सेलेक्ट करवा रहे थे तो मुझसे मेन चेन? यहाँ से नीचे से यूं ऊपर, यूं यूं ऐसे जाके फिर इस तरफ. ओके, ये चाह रहे हैं मैं ये मेन चेन सेलेक्ट करूं, राइट? बिल्कुल कर ले, लेकिन एक प्रॉब्लम है. आंसर करें. आप इसका नाम कैसे रखोगे? जस्ट गो थ्रू इट. दैट्स इफ येलो वाला इज योर मेन चेन, राइट? इफ येलो वाला इज योर मेन चेन, दैट्स अ साइड चेन. And then what you are doing right now is you are having a side chain of a side chain. You get this? ऐसे सर 3 कार्बन वाले तो प्रोफाइल ही आइसोप्रोपाइल नाम की मखलूक हुई, प्रोपाइल तो नहीं हुआ कोई ये. अगर आपकी जबान में हो तो जवाब है. आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल टाइप की चीज हुई ना, सेकेंडरी कार्बन पे ब्रांच. क्या पहले से जाने. तो हम आईयूपीएसी नेमिंग में ऐसी कोई हरकत नहीं करते, तभी हमने कॉमन नेमिंग को डिस्कस किया. दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन रंजित. दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट. सो यू अंडरस्टैंड इट, राइट? जबरदस्त. तो समझने के लिए अगर मैं आपके सामने तस्करा कर दूं, मैंने टर्म यूज की थी, अभी बिल्कुल समझना नहीं. आई हैव सेड आइसोप्रोपाइल. सो इनिशियली व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर वाज, आपको पता है देयर वाज दिस थ्योरी. क्या क्या दुनिया बदल बदल के आई है ना. फर्स्ट एक थ्योरी थी जो मुझे कभी समझ में नहीं आती थी, वो ये थी कि जो सोक्रेट्स भाई थे, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, अकॉर्डिंग टू हिम देयर वर ओनली 4 एलिमेंट्स. यहाँ से कहानी शुरू. 4 एलिमेंट्स कौन कौन से? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर. दे हैव ग्रीक गॉड्स एंड दे हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस, कि वो एक गॉड है जो अर्थ का है और एक गॉड है जो वो वाटर का है और पता नहीं क्या. यहाँ से शुरू थी कहानी. सो फर्स्ट पर्सन who identified कि ऐसा नहीं है, that was Al-Razi. He categorized all the elements into 2 basic types: metals, non-metals. Then there was a problem, sir. There are certain metalloids. So then Jabir bin Hayyan, he classified elements into 3 structures. So eventually पूरा का पूरा structure. अब ये एक आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग दी. Similarly, हम जो अभी काम कर रहे हैं ना IUPAC, that's the most developed naming. तो ऑब्वियस सी बात है इससे पीछे के भी कुछ फेजेस होंगे, राइट? क्या ख्याल है? तो एजेंशियली तो साइंटिस्ट लोगों को ये नहीं पता होगा ना कि आईयूपीएसी नेम रख ले. सो दे स्टार्टेड अप विद दिस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बना ही नहीं सकते हम. देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट. व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव, organic compounds are the compounds of living organisms. So if you want to have any organic substance made, you kill a living organism, then derive it. Do you get it? पहले जमाने में लेदर टैनिंग करते थे, क्योंकि लोग कपड़े तो पहनते नहीं थे, वो स्किन पहनते थे. तो वो क्या करते थे, उसके लिए जानवरों को मारते थे, पेट काटते थे, सल्फ्यूरिक एसिड निकालते, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था और सल्फ्यूरिक एसिड को ऑर्गेनिक कहते थे. Do you get this? Then Wohler भाई, there was this name Wohler, हम करेंगे उसे. Wohler was the first chemist to synthesize an organic substance in lab. उन्होंने यूरिया बनाया था सबसे पहले.
अब जब उन्होंने यूरिया बनाया तो थिंग्स दे रिवोल्यूशनलाइज कि यार ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो बन सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आज हम अपनी लाइफ में से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस निकाल दें ना सर, तो हम बिल्कुल स्टोन एज में चले जाएंगे। वी आर सराउंडेड बाय दैट। प्लास्टिक सबसे बड़ा जो सब्सटेंस है जो आप यूज करते हो, ऑलमोस्ट हर चीज आपकी प्लास्टिक कोटेड है, प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है। इवन कुछ भी कर लो आप, उसके बगैर आज रह ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि आप रह सको। तो वो दैट इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इतना खतरनाक रेवोल्यूशन आया था, इतनी जल्दी रेवोल्यूशन आया था दे वर नॉट हैविंग एनी क्लू कि यार ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम जब बनाना शुरू करेंगे ना तो एक्चुअली बनाएंगे कितने, पता नहीं कितने बनाएंगे। तो दे स्टार्टेड नेमिंग सब्सटेंसेस ऑन द ओरिजिनल थिंग्स दे हैव। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं, एल्कली मेटल्स, व्हाई आर दे नोन एज एल्कली? आप जवाब दे दो मुझे, सर वो वाटर सॉल्युबल होते हैं इसलिए कहते हैं एल्कली। जी नहीं, टर्म एल्कली इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड प्लांट एशेस। अरब्स ने सबसे पहले सोडियम ऑब्टेन किया था पौधों को जला के, फसलों को जला के, तो एश इज फ्रॉम एल्कली। तो इन्होंने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी इस तरह से नेम देना शुरू कर दिया कि हम जो है वो कोई सब्सटेंस का नाम रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं उस दिन बात कर रहा था एसिडिक एसिड, तो इसका ओरिजिन क्या है? विनेगर है। अल्कोहल है तो ये अल्कोहल जो है वो मीथाइल अल्कोहल हो सकता है, वुड स्पिरिट हो सकता है। इस तरह से नाम रखना शुरू किया। तो पुराने जमाने की नेमिंग में टर्म होती थी आइसोप्रोपाइल, जो बात इन्होंने की है। तो उस वक्त तक लोगों को आइडिया ही नहीं था कि कितने होंगे। कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक जो सिंथेसाइज्ड हैं। तो उसको नेम करने का एक सिस्टमैटिक मेथड बनाया गया, और इट्स नॉट वेरी ओल्ड। ये बना है, कंप्लीट हुआ है 1978 में। लास्ट अपडेट आई है आईयूपीएसी की 1978 में, कि हमारे आपके अम्मी अब्बा की जवानी की बात। तो उस वक्त जो है उन्होंने अपडेट किया है, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो एक नेमिंग होगी जो हम सीख रहे होंगे, हम ये भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ओरिजिनली कुछ चीजें इतनी फेमस हो जाती हैं कि उनका नाम फिर नहीं भुला सकते आप। जैसे अगर हम कायदे आजम का ओरिजिनल नेम पूछें आपको, कितने लोगों को मोहम्मद अली जिन्ना पूरा नाम याद हो। इसी तरह से अल्लामा इकबाल जो है, वो उनका जो नाम है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, वो नाम ही घूम घूम जाता है। तो हम लोग ओरिजिनल जो सब्सटेंस का नेम होता है ना, वो इतना फेमस हो चुका होता है कि हम उसका फिर स्टैंडर्ड नेम भूल जाते हैं। तो आज भी अगर हम कोई मेडिसिन बाय करें, आप इवन कोई भी पीएनजी तो इनको ट्रिब्यूट देता है, कोई भी पीएनजी का सब्सटेंस बाय करें, आप टूथपेस्ट बाय करें, हेड एंड शोल्डर बाय करें, सोप बाय करें, तो उसके ऊपर ये नॉमेनक्लेचर यूज हो रहा होगा, आइसोप्रोपाइल इथानॉइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल इथानॉल। यू गेट दिस? तो ये इन्होंने सवाल उठाया था, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन किया। खैर एनीवेज, सो इज दिस नेम अंडरस्टूड टू क्लियर एवरीवन कि इसका नाम यही होना चाहिए, 3 इथाइल 2 इथाइल पेंटेन। और मैंने आपको रूल सिखा दिया अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस वाला, ठीक है? अच्छा, और अब आते हैं, इसके ऊपर आते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस भी बता दी, एल्काइल मीथाइल भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब आते हैं डबल बॉन्ड्स। सो वी कैन हैव double bonds. So they are named as alkenes. So at least one double bond between two carbon atoms is going to convert your hydrocarbon into an alkene. Okay, let's do an example. So that's ethene. So इसके दो नाम हो सकते हैं। ओरिजिनल नेमिंग में जाए 1 2 3 4, आपने रट्टा लगाया हुआ होगा सबने, ब्यूटुईन कहते हैं इसे। और इसे हम यहाँ पे एमडीकैट लैंग्वेज में कहते हैं 2 ब्यूटीन। दे आर एब्सोल्युटली फाइन। आपको टेस्ट में ये हार्डली नजर आएगा, ये नजर आएगा ज्यादा। डन? Okay, so now we have to create a priority list, and that priority list is going to explain
which gets the more priority. So double bond is more important, and then only an alkyl group. So that's an alkyl group. So let's understand it through an example. If we have an alkyl group here, and if we have a double bond here, so we are going to prioritize double bond in the grounding. So 1, 2, 3, 4 is considered correct because double bond is more preferred here. So the correct name for this substance is going to be 3-methyl and what? 1-butene. ठीक है, आप जिसे 3-methyl ब्यूट 1-ene भी कह सकते हैं. Do we get this? आपका क्या नाम है? फातिमा. आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला. अब्दुल्ला. आपका क्या नाम है? विनय. विनय. That's Vinay. 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 मुजम्मिल. टीचर. ताहा. अली अब्बास. आप दोनों दोस्त हैं. पीछे चलते हैं. राफिक. आपके बराबर कोई बैठा है? खाली है. दाऊद. दाऊद के पीछे जो लड़का बैठा है? अयान. सॉरी, दैट्स अ वेरी difficult. Rubaina. Rubaina and Dawood. Okay, you. Chanzel. Tehri and Aisha. So you guys are friends. कल भी साथ बैठे हुए थे. Shanze, Tehreem and Aisha. You guys are from KGS. Okay, and you? That's nice. आप आ जाए, आप बताएं. मनाहिल. मनाहिल क्या आ गया? मनाहिर. ओके, आगे आ जाए. लूसा. फातिमा की पड़ोसन. ईमान. दोस्त हैं आप लोग? ईमान फातिमा ने भी रेफर्ड के दोस्त हैं. Okay, you. Laiba. Laiba. So we have two Laibas. So we have two functional groups on the same carbon. So that's equivalent carbons. That needs more explanation. Laiba who? See, that's the second priority. So one is only Laiba, one is Laiba. Laiba Khan. You guys are friends. You became, yeah, eventually everyone gets friend. Yeah. Zunaira. मेरी बेटी का नाम है जुनैरा. You. इमामा. And you. अरीबा. सिर्फ आप सबके नाम बताएं. तो मुझे ये तुमने गलत सवाल किया. बेइज्जती हो जाएगी. मैंने आई रिमेम्बर मैंने ये जो दो बैठे हुए हैं ना, ये जो दो बैठे हुए हैं, इनमें से एक का नाम ताहा है, एक का नाम मुजम्मिल है. अब मुझे नहीं पता कौन ताहा है कौन मुजम्मिल है. और वो दाऊद है ना? दाऊद है ना? मुश्किल बात है. ये फजूल सी अटेम्प्ट है. ट्राई करने में क्या है? ये दो लाइबा स्क्वाड है. लाइबा खान वो है, और ये पता नहीं कौन सी लाइबा है. और तुम कौन हो? फातिमा. अब्दुल्ला. बस बहुत हो गया. बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. इसने आपने क्या नाम बताया मुझे? तुम? अरे वाह, नहीं याद है. कभी मैं ऐसे टाइम पास करता, मैंने कहा चेक करते हैं जब तक ये लोग नाम लिख रहे हैं, क्या पता याद हो जाए. कुछ नहीं याद होगा. डबल बॉन्ड्स. ओके, अब एक नई चीज करते हैं, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स. सो वी कैन हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड्स. किया है आपने मल्टीपल डबल बॉन्ड्स? जी. So what happens to the IUPAC name if we have 2 double bonds, if we have 3 double bonds, if we have 4 double bonds in the same chain? What happens? So ALK stands same, and then we add A to it. That is alpha. And then for 2 double bonds, we write di, 2 di. And same thing, ENE.
Do you get it? And then for three double bonds. So ALK stays same. Then we add A to it. And now what do we do next? Zabardast. Try ENE. So this should be alka, tetra, ENE. So additional substances को थोड़ा सा हम highlight कर लेते हैं. A is new, जो इनमें आया है, ठीक है? And then we have this thing, di, tri, tetra. Okay, let's understand it through an example. So if we have two double bonds, CH2. So how do you name this? So basically, we are going to start the count from this side. 1, 2, 3, 4, 5. And we have to have double bond on first carbon, double bond on third carbon. So we are going to write 1, 3. Total number of carbons are 5. So we are going to write pent, and then we have to add A to it, and then we have to write di to explain two double bonds, and ENE shows presence of double bonds. Is this understood? Good. Can I write it this way too? So that would be considered correct. 2 penta 1 3 di ENE. इनमें से कॉमन कौन से? कॉमन मतलब इनमें से एमडी कैट वाला ये है, नॉन एमडी कैट सीआई वाला ये है, लेकिन एमडी कैट वालों को क्या पता इस दफा इतनी अकल आ जाए कि वो भी उसमें आ जाए, तो चलेगा, सब कुछ चलेगा, कोई टेंशन नहीं. अच्छा आगे आ जाते हैं फिर हम, ठीक है. फॉर थ्री डबल बॉन्ड्स, सो वी कैन add more measures to it. चलो बताओ क्या करोगे. So the parent chain सीधी भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है. क्या ख्याल है? पूरी पेरेंट चेन हो जाएगी, जबरदस्त, गुड. लेकिन स्ट्रक्चर ही गलत बना, फजूल बातें करो तुम लोग. मैंने एक जज्बात में आगे थ्री ज्यादा लगाया और नाम भी रख रहे हो यार, जा यार, नाम भी रख दिया तुमने यार, गलत बात है. ओके, नाउ दैट्स द पेरेंट चेन. अब सही है, राइट? नाउ व्हिच साइड डू वी काउंट फ्रॉम? लेफ्ट और राइट? सो लेफ्ट साइड 1 2 3 5 6 7 and 8. So we have double bond in first, double bond in third, double bond in fifth. So that's 1 3 5 8 carbons के लिए oct. We add A to it, then try, and then ENE, or we can have octa 1 3 5 try. नेम करने से मैं जो है ना वो सवाल पढ़ने लग गया था. मिथाइल ब्रांच लेके आते हैं बेटा, हम तो फिक्र ही नहीं करो, सारी ब्रांचेस लगाएंगे, जिंदगी में ब्रांचेस हो जाएंगी बहुत सारी. कैन आई चेंज माई स्लाइड? Okay, so let's put it through a rule. Double bonded carbon atoms are always considered parent chain. That means they are not ever going to be a branch. ये रूल है. So हाँ ये रूल है, ये तो इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं. आई थिंक मैंने ये लिखा होगा पहले. अच्छा लास्ट वाली स्लाइड दिखा दूँ, देख लो भाई, लास्ट वाली स्लाइड देख लो. एक मिनट रुक जाओ, मैंने वहां पे लिखा था ना, नहीं लिखा था मैंने. सही है, तो अब लिख लिया, कोई बात नहीं. दिस वॉज द लास्ट स्लाइड.
Done. So that was the rule, and so does the question. कि भाई अगर हमारे पास एक ब्रांच भी हो, so in that case what should be the parent chain? तो अगर हम longest carbon chain select करें, so that can be this, right? That's your branch here, and that's your branch here. So counting preference double bond. Now what do we do? So we write 3-ethyl first, then we write 2-methyl, and then we add the position of double bond. Well, that's 2 and 5 carbons, pentene. Is this understood? Sorry? हाँ जी जी, वो भी बस. So you can write this as well. Pent. अब इसकी करते हैं कुछ एग्जांपल्स. Done. Why to write pentone? मतलब you don't want to locate where double bond is present. You just want to write pentene. So there are 4 possible combinations जहाँ double bond हो सकता है. 4 पे भी लगा हुआ है, पर जैसे नंबर 4 पे लगा होता तो उस साइड से काउंट होकर 2 हो जाता, फिर 2 भी नहीं होता. तो 1 पे भी हो सकता है और तो 4 पे भी हो सकता था. इस तरह तो कहीं भी हो सकता था. तो वो इसका फिर क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि भाई अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, then what should we be doing? Still we have to write the location of the double bond. डबल बॉन्ड सिर्फ आप 2 कार्बन में और 3 कार्बन में नहीं बताओगे, यानी कि प्रोपीन और इथीन. अदर देन दैट तो आपको बताना पड़ेगा हमेशा कि कहाँ है. या दैट्स अंडरस्टूड, बट स्टिल यू हैव टू शो दिस. लगा ले, फर्स्ट वाले पे लगा ले. नहीं अगर साइड लगा 1 मिनट ना, आप पता है क्या करूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड चला लगा दूँ या यहाँ पे लगाऊं? चले यहाँ लगा CH3, बाकी सब कुछ यही रहेगा. डबल बॉन्ड यहाँ पे भी रहने दो या यहाँ से हटा दूँ? यहाँ से हटा. सो CH2 CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2. ये चाहते हैं हम. अब क्या चाहते हैं आप, सवाल क्या है? किसकी प्रायोरिटी? प्रायोरिटी लिस्ट देंगे. हेre's your answer. तो पहले तो लॉन्ग चेन इसके आइडेंटिफाई कर ले. तो ये हो सकती है इसकी पैरेंट चेन, और उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 5 है. सो 4 पे मीथाइल ब्रांच है, 3 पे इथाइल ब्रांच है. सो 3 इथाइल, 4 मीथाइल एंड 5 कार्बन है. फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, 1 पेंट. राइट? इज दिस अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? ओके, then let's bring some questions up.
स्केलेटल तो अच्छा वो भी बना देते, इसका नहीं बना रहा, ये आया था और यहाँ था, अगर 3 गार्मेंट हुआ तो एक, और वापस से 4 होने चाहिए। अब आ जाते हैं CH3, ठीक है। अब जरा आप करो तो सही नहीं के साथ करते क्या वो। CH3, then we have CH2, then we have CH2, then we have CH2, then we have CH3, ठीक है। और नंबर 4 पे दिखा देते हैं आपको CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 और CH3, ठीक है। चलिए पहले आप नाम रखें इसका, फिर मैं रख देखते हैं आपको क्या कहता था। ये क्या कहना है? कॉलेज से आपको इतना प्यार है, कौन सा कॉलेज आ रहे हैं? और अगर आप अच्छा तो अटेंडेंस मिलेगी, इसके बाद आपको कॉलेज जाना है, इसके बाद आपको क्यों आज क्या है कॉलेज में? आज तो सीनियर वालों को जाना था, हम लोगों ने आपको ये नजर आ रहा है एक्चुअली? आर यू श्योर? वो दिन बाद ये लागू होगा। Microscopic and so this is party going on, पानी station structure cell phone, उन लोगों ने लाइट्स क्यों बंद की है? सर हमने तो जलाए नहीं। इतने अंधेरे में बैठे ना, अल्लाह ने एक गाना दिखा बता भी नहीं होता लाइट जला। मेरी कॉपी नहीं कर रहा नहीं, एमडी कैट में कोई कॉपी नहीं करेगा। हाँ गुड, दैट्स नाइस। अब आंखें थोड़ी बंद हो जाएंगी, ज्यादा रोशनी मिलेगी अब खुली। मेरे बुला रहा हूँ फ्रीडम ऑफ बॉडी तुम बाद में कैसे पहले खुद तो ट्राई करो। इनमें से लिखा है कि तुम्हें नहीं आती है, नहीं पास में कॉपी नहीं है, ये नेमिंग आती भी नहीं है। आती हो बेटा लड़ने के लिए लिखा है, तो इसमें लड़ने वाली बात कोई बात नहीं सर, वो खुद ही परमिशन दे रहे। बोलो, सोचो। ये सर लेकिन फ्यूचर तो बेटा ये मिल गई कब की? कब की मिल गई? मैंने मतलब पहले दिन ही दे दी। इसमें एक और भी होगी, कॉयल? इसमें एक और भी होगी। यस। नोट्स किए देखिए आपने वो, इसमें हमने क्वेश्चन रखे हैं सिर्फ, आई बिलीव इसमें आपके पास चेक कराओ मुझे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन होना मेरे से। अभी रुक जाओ ना इससे वाला एक और होगा, मुझे दिखा देना। अच्छा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रोग्रेस आपको इसके क्वेश्चंस करने चाहिए, इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी है। और लास्ट टाइम अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इसमें से आपको पता है 2 दफा एमडी कार्ड हुआ यस नहीं, जो लास्ट आपके सीनियर है ना, they have been the most luckiest batch in their entire academic history. रीजन जब वो लेवल में थे तो मिनी सीरीज ग्रेड 10 ओ लेवल्स मिनी सीरीज, ग्रेड 11 ओ लेवल में 2 पेपर कैंसिल हो गए, फिजिक्स का Q2 कैंसिल हो गया। एएस में आए तो उनका फिर P1 P2 कैंसिल हो गया, A2 में आए तो 9 मई वाला सीन हो गया। फिर आगा खान ने जब टेस्ट किया तो आगा खान ने भी 2 दफा टेस्ट किया, क्योंकि आगा खान का इतना हाई स्टैंडर्ड हो गया था उसका कि उन्होंने अपना जो 6 अगस्त को टेस्ट किया था ना, वो 2010 वाला पेपर पूरा चला दिया था सेम कॉपी पेस्ट। सोचा हम 2010 एंड 2023 एमडी कैट पेपर सेम एग्जैक्टली, शुगर उन्होंने डेट चेंज की तो हमारे ये भी वो दबा देते, तो उसका फॉरन जो है वो इशू बना, सो दैट दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड टेस्ट डे पे ही उन्होंने अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट अनदर टेस्ट। तो 18 अगस्त को दूसरा टेस्ट, तो जिस बच्चे ने मतलब पहला टेस्ट मतलब देखना आप बैच के साथ कितना अच्छा होगा, उनको एक दफा एक्सपोजर मिला पूरा फुल प्लेज आवा उनके टेस्ट का, उसके बाद उन्होंने फिर जो है वो तकरीबन 10-15 दिन के बीच वो ब्रेक के बाद दोबारा रीटेस्ट किया। इसी तरह से एमडी कार्ड हुआ, एमडी कार्ड कंडक्ट हुआ, एमडी कार्ड के ऊपर एलिगेशन आए कि पेपर चोरी हो गया, पेपर लीक हो गया, लोगों को पेपर का पता चल गया, और देन व्हाट हैपेंड, न्यू एमडी कार्ड कंडक्ट। और पता मजे की बात, न्यू एमडी कार्ड वो भी लीक हो गया।
तो मतलब उन्होंने हर चीज जिंदगी में 2 दफा की है। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि जब तुम लोग ऑपरेशन थिएटर में होगा ना, तो जब एक बंदा मर जाएगा तो मैं पूछ रहा था लेट्स डाई। तो मैंने सी मुझे से डन, सबने रख लिया ना? यस सर। चलो भाई अब मेरी बारी। तो फर्स्ट वाले में आते हैं। फर्स्ट वाले 2 3 So- beauty. First is I see 3 CH3 groups that's connected to 2 carbons. So इसमें से फर्स्ट कार्बन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स लगाते हैं, CH3 CH3 CH3. Then I have another carbon. Then I can arrange CH3 to it. And that's the only way I can balance all the carbons, right? क्या था? So अब identify कर लें, structure is perfectly symmetrical. So that's going to be, नहीं तुम्हारा भी नाम गलत हो जाएगा, देखो 1 2 3 4. So on second carbon I have 2 methyl groups. On third carbon I am having 2 methyl groups. So name is going to be 2 2 3 3 tetramethyl butane. कितने का सही हुआ? गुड, नाइस। एक भी गलत हुआ ना, अगर कॉमा भी गलत लगाया तो गलत है नाम। ये इतना स्पेशल है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं। सो सेम अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट कार्बन एक बोरो करते हैं, वी कैन कनेक्ट 3 alkyl groups to it, CH3 CH3 and then CH, ठीक है। नाउ 3 left, so let's draw 3 carbons, ठीक है। So 1 borrow किया तो 3 left, then I'm having 3 alkyl groups here, so let's connect 3 alkyl groups here, CH3 CH3 CH3. Now how do I balance this up? There is, I see carbon basically is not completely occupied here. So if I have draw a double bond, then still I have one of the carbon bonds left. So it has to be a triple bond. Do you get it? Yes. ट्रिपल बॉन्ड का नाम अभी, अच्छा हाँ अभी हमने नहीं किया, राइट। एल्काइंस होना चाहिए, एल्काइंस होना चाहिए। that should have not given, अभी नहीं होना चाहिए। चले खैर, अच्छी बात है, हो गया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे पहले टेस्ट किया था स्ट्रीम 1 में, तो 6 बच्चे खड़े हुए सर आउट ऑफ सिलेबस। तो मैंने कहा चलो लेट्स डू अ डील, if I prove it that's not out of syllabus, you guys have to buy me OPTP. Done? If you are okay और हमने रिकॉर्डिंग में कहीं कुछ नहीं ऐसा किया हुआ होगा, then I'll buy you 6 OPTPs. Done? तो उसमें से 2 तो डर गए कि कुछ गलत होने वाला है, 4 खड़े हुए, नहीं सर डन है। फिर मुझे 4 OPTP बर्गर मिले। So that's out of syllabus. That's nice. इस पे बनता है वैसे तो। खैर it should have been 2 2, सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है और 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है, तो 5 5, so that's tetra, ठीक है। और अभी हमने अल्काइंस नहीं पढ़ा, लेकिन थर्ड पे there is a triple bond, total number of carbon atoms are 6, so hex। अब E N E नहीं आएगा, Y N E आ जाएगा, ठीक है। CI में डिफरेंट नेमिंग होती है किसी के लिए। टेट्रा 4 मिथाइल सॉरी टेट्रा मिथाइल नहीं लिखना, या सॉरी आई एम सो सॉरी,
टेट्रा क्या? टेट्रा मीथाइल। अब सही है? सर कुछ नया होता है, लेकिन इसमें ना हमारी क्लास के बच्चे नहीं करें। 3 ये जो CH3 है ना, ये फ्री रिलेशन टर्मिनल होगा। आपको अगर फिर टोटल दिखा CH3 6 और C4 तो फिर वो सही हो। Sir, let's say 2,3-dimethyl butane would pass in CIE. So दोबारा बोलो। 2,3-dimethyl that would pass in CIE. That means उसका आंसर लिखा है, so this is 2,2,3,3 tetramethyl. So I don't आप think डायमीथाइल कह रहे हो, CI में कहाँ से ऐसा एक्सेप्टेबल है भाई? I think so. नहीं नहीं, तो आपके टीचर ने आप गो थ्रू कर दिया, CI वाला तो किडनी मांग लेगा। नहीं, अगर CI में if you have 4 methyl groups and you're showing 2, that's absolutely incorrect. So every group has to be a number. That's understood. Simple. अब 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, सबके सब सेम है, तब भी आपको लिखना है, ठीक है? तो उसमें हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप जब क्या कहते हैं CI वाले आपको जो A मार्क्स काटते हैं ना आपके, वो इस बात पे काट सकते हैं कि आपने स्ट्रक्चर गलत बनाया नाम से रखा है, और वो आपको कभी कभार नाम ना लिखने में भी ना नंबर दे देते हैं, बिकॉज दे आर मोर लाइक के स्टूडेंट दे हैव दिस आइडिया ऑफ bonding, they can show me the structure clearly, understand electrophile, nucleophile and substitution, addition, that's it. So they are not more into this naming, but वो incorrect होगा अगर आपने दे दिया, ठीक है? अच्छा, अब इसका क्या नाम रखें? So we see a double bond here, right? 3 Other than that तो कुछ भी नहीं है. So if we count, we are going to count from this side 3, 4, 5, 6, 7. So that's 3 heptene. ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हमने नहीं किया था, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला अभी छोड़ दें फिर। वैसे मैं नाम लिख देता हूँ, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप करें इसको। 4, 5, 6, 7, बल्कि हम इसको डबल बॉन्ड कर लेते हैं ना, क्या ख्याल है? डबल बॉन्ड कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला फिर मिक्सिंग हो जाएगी, राइट? सो लेट्स ऐड हाइड्रोजन टू इट, अब आप रख सकते हो उसका आराम से नाम, ठीक है? So counting preference stays same. So there is a double bond on second carbon and fourth carbon, और यहाँ पे है methyl. So what should I write? I'm going to write 6 methyl 2 4 no 7 is hept, right? 2 है ना, तो hepta डाइईन, नॉट हेप्टेन। मैंने सही वेरी गुड ट्रिपल। हाँ बिल्कुल सही। तो अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड के साथ किया होता तो वो तो हेप्टा डाइईन हो जाता, और डाई के साथ वाई नहीं आ जाता। देन इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन इन दिस? पक्की बात है, सबको समझ में आ गया? चलो ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं इसके साथ। So for triple bond we use some alkyne, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। रूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है फजूल में, और बिल्कुल परेशान मत हो, ये CI में हम कर रहे होते हैं ये हरकतें। MD कैट वालों का मानना होता है कि ये दोनों एक ही चीज, कोई मसला ही नहीं है, इनको कोई मसला नहीं, इसमें क्यूट लोग हैं। सो दैट्स इथाइन, दैट्स इथाइन, ठीक है? तो इनके एक ही चीज है, तो आप इसमें बिल्कुल परेशान नहीं हो सर आपने हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना दिया। मैंने नहीं बनाया, MD कैट वाले नहीं सोचते, तो आप भी इतना मत सोचिएगा, ठीक है? सो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 सो अगेन प्रेफरेंस में अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट को अपनी अपडेट करें, सो इट्स एग्जैक्टली डबल बॉन्ड के साथ आ जाए। 15 मिनट पहले है 15 मिनट ऊपर जा चुका हूँ 45 मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। सर मारूफ तुम आए थे, वो देख के चले पढ़े गए। जा रहे हो, और सर मारूफ भी आगे चले वो गए। इतने सीधे हैं, उन्होंने देखा पढ़ा रहे हो, वापस चले गए। तो भाई वो क्यों चले गए, मतलब उनको किसी ने रोका है? सही है यार, सही, सॉरी यार, माय बैड यार।
हम भी पढ़े जा रहे हमारे हैं। साथ 2 दिन में कुछ नया हुआ है हमारे साथ स्टेट में। पहले दिन हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, दूसरे दिन हमने ज्यादा पढ़ लिया। चलो बेटा भागो जल्दी से, कहाँ जाना है मुझे? अब तो आपके वो जा चुके हैं बायो से। क्या पता वापस लेकिन आप लोगों को बायो आती तो नहीं है ना, तो मैं बायो भी पढ़ा दे। ठीक पढ़ाएंगे आप, वो उस वक्त मसला है जब आपको आती हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो ये सर मारूफ मैं सर मारूफ को बुलाया हूँ। दोनों ही वापस आए। अबे भाई मेरी पेंसिल नहीं होती है। भाई मुझे एक असिस्टेंट गिराना नहीं, मर्डर हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ, मैं अपनी जरूरी चीज को तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। एक नाम दिया। अब्दुल्ला, why are you crying? Why are you crying? तो बोलो तुम लड़ सकते हो। क्या है? दिखाओ ना। नहीं नहीं फिर भी VM नहीं तो अच्छा लगता है, वो तो मेरे मतलब पसंद है तो। नहीं, मैंने तो भेजोगी क्या? आंटी सुबह से पढ़ लिया, इसको प्लीज कर रहे हैं। सैटरडे बोलो, सैटरडे बोलो। नहीं प्रॉमिस। सबका लेकिन तो मेरे हाथ में फोन होगी। नहीं, तुम नहीं। मैं लिटरली बोलूंगा आंटी सुबह से पढ़ रही है। आंटी ये तो सुबह से खा रही है और स्टडी कर रही है, इसको घर ले जाए आप। अच्छा मेरा जब तक वो पढ़ी मैं नाश्ता करके आई थी, उन्हें नहीं पता है। ये बोली नाश्ता करके आएगी, फिर भी खाई जाएगी, तो मतलब पढ़ना होता है नहीं, फोन यूज करके और खाना खा रही थी। आपने मतलब पैसे इसकी तरह वेस्ट कर दिए। थैंक यू। डिलीट नहीं करता। मैं एक मिनट में फोन नहीं मांग कुछ नहीं नहीं यार, मैं नहीं कह रहा। हेलो, वो मेरी बात। हमने फोन ऐसे इधर कोई लड़का नहीं है, मैं उसका नाम लेता हूँ, लड़की का नाम तो रीता। वैसे वो दूसरे को जाओ फिर मारूफ को बुला लो। नहीं ऑप्शन मैं तो मुझे सिर्फ बताया नहीं, अगर टीम पे नहीं आया कर जाएगा। आधे घंटे में कितना पढ़ा लेगा। फोन ले लो। अच्छा मैं नहीं सब फिर लोने हो गया। आगे कुछ भी नहीं। वो मजाक किए जा रहे हैं और आप सुन ये रहे मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा पढ़ रही है, मैं ऐसे ही बोल रहा था। हो। मेरे को एग्जाम से रोशनी में सारे दोस्त भी नहीं है यार। This is bullying. तो जाओ पर से प्राइस देखते हैं, उसने मेरी चर्चा में क्लास में Why is he like